हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Spring and the glacier. There is a most important topic here. The springs and glacier. Spring and surface is the outflow of the groundwater through on the opening in the rock under is a hydraulic pressure. In such a case, the aquifer is the area exposed at the surface or it the underlies and the impermeable rocks. The amount of water in the aquifer depends upon to the amount of rainfall in that area. The landform characteristics and the size of the aquifer here. Here, most important diagram show the spring air formation. The spring formation in the cloud, rain, water table, impermeable rock, and spring. There is a most important diagram here show. The next here is a hot spring. There is the most important here. Sometimes the water that flow out of the spring is hot. Such springs are called hot spring. They generally occur in the area of active or recent as volcanism. In the volcanic region, there is underground water get heated after the coming in the contact with the hot rock or stem. The hot springs are found to the many part of India, especially in the Himalaya and Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh. They also occur in Uttarakhand, Jharkhand, Haryana, and Assam. Manikaram is the Kulli Valley, and Tapani is near of Simla. Jalamukhi is the Kangra, and Swan is the Haryana. Rajgiri and the Sitakund of Jharkhand and the Brahmanath Uttarakhand as have a hot spring. The next here a glacier. A spring is melting hot water and steam is a form of fountain or jet at the regular interval. They are called to the glacier. Their interval is called a glacier. The term a glacier has been derived from a Icelandic word is a glacier. In the case of glaciers, hot water is ejected to the voluntarily because of the pressure created by a stem. The water does not come out continuously, but it's a flow out of intermittently. The period of between the two emission is sometimes irregular. The best example of glaciers working at the regular interval is all faithful in the Yellowstone. The National Park of USA, which is situated in the Rockies mountain region, its regularity is the occurrence that is a tourist is correct there is a watch by aids. The glaciers are found in the Iceland and the Yellowstone National Park of USA and the northern part of the New Zealand. There is the most important here. Important also here a diagram. Here show the glacier is the most important part here. A ball of gas which is the tied to the eruption and the ground passes containing water. There is a most important diagram in there. यहाँ जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है स्रोत और गीजर। देखिए स्रोत और गीजर क्या है। शैलों के दरारों अथवा छिद्रों से द्रव्य जो है संचलित दबाव के कारण भूमिगत जल के धरातल पर स्वयं निकलने को स्रोत कहते हैं, यानी स्वयं ही निकलता है, उसको हम जो है स्रोत कहते हैं। स्रोत के निर्माण के लिए जरूरी है कि जलावतीय शैल या तो धरातल पर जो है अनावृत हो या अपारगमय शैलों के नीचे दबी हो। कहते जलावतल शैल में जल की मात्रा उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा असलकृत की विशेषताओं और जलप्त शैलों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो आप। देखिए इस डायग्राम में जो है स्रोत का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप मेघ देख सकते हो, वर्षा, जल स्तर, अपरागमय चट्टाने, प्रागमय चट्टाने। तो ये जो है एक तरह से जो है स्रोत है जल का। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गर्म जल स्रोत। देखिए गर्म जल स्रोत जो है कई मायने में कई जगहों पर जो है इंडिया में विद्यमान है। कभी कभी जल स्रोत से निकलने वाला जल गर्म होता है। ऐसे स्रोतों को गर्म जल स्रोत कहते हैं। ये सामान्य सक्रिय नवीन ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमि के जल जो है पृथ्वी के अंदर गर्म शैलों अथवा भाप के संपर्क में आने से गर्म हो जाते हैं। गर्म जल स्रोत जो है भारत के अनेक भागों में पाए जाते हैं। भारत के हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और असम में भी मिलते हैं। कुल्लू घाटी के जो है मणिकर्ण में, शिमला के निकट जो है तप्त पानी में, कांगड़ा के जो है ज्वालामुखी में, हरियाणा के सोहना में, बिहार के जो है सीताकुंड
और राजगिरी में तथा उत्तराखंड के जो है बद्रीनाथ में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं, जो कि इसकी विशेषताओं को दर्शाता है। अगला जो है गीजर। देखिए गीजर उन गर्म जल स्रोतों को कहते हैं जिनमें गर्म जल अथवा भाप एक निश्चित अंतराल पर जो है फव्वारे की तरह निकलते हैं। गीजर शब्द जो है आइसलैंड नामक देश की भाषा के शब्द जो है ग्लेशियर से बना है। भाप के द्वारा उत्पन्न भाप के जो है कारण गीजर में जो है गर्म जल बड़े वेग से फूट पड़ता है और इसमें जल निरंतर नहीं निकलता है, अतुल रुक रुक कर जो है निकलता है, क्योंकि धरातल में से निकली इसकी निकास नली बहुत ही सक्रिय होता है और इससे जल तथा भाप का प्रवाह लगातार नहीं रह पाता है। कुछ जो है गीजर एक निश्चित अंतराल पर जो है फूटते हैं और निश्चित अंतराल पर फूटने वाली गीजरों में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ऑलैंड फेथफुल गीजर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह रॉकी पर्वत क्षेत्र में जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है और इस गीजर का जो है फूटना इतना निश्चित समय से होता है कि लोग अपनी जो है घड़ियां मिला लेते हैं। संसार में गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जिसमें आइसलैंड न्यूजीलैंड की उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया। देखिए यहाँ पर गीजर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें दरारें आपको दिख रहा होगा। उत्शोषण भाप एवं जल धरातल पर फूट पड़ने वाले जल से भरे भूमिगत मार्ग, गहराई में चट्टानों में संपर्क में जल मार्ग गर्म हो जाता है और गहराई में गर्म हुआ जल ऊपर धरातल तक पहुँच जाता है। तो ये गीजर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। देखिए इन बातों को जानने से हमें यही बात समझ में आया है कि शैलों की दरारों अथवा छिद्रों से द्रव्य जो है चालित दबाव के कारण भूमिगत जल के स्रोत और धरातल पर निकलने के जो है जल स्रोत कहते हैं। ये स्रोत गर्म या ठंडे जल के हो सकते हैं। जिन गर्म जल स्रोतों को जल बड़े वेग से फव्वारे की तरह भांति बाहर आता है उसे हम गीजर कहते हैं।